Assalamualaikum everyone, I am Zara Shah and I hope you all are fine. So today is our second lecture and I know that a lot of gap has been taken place between the first and the second lecture, but due to some personal issues I wasn't able to upload any video, but hopefully I will be able to complete this criminology syllabus in this November month. So let's start our second lecture. So the today's lecture topic is nature, scope and importance of criminology. If I revise the previous lecture, so in last lecture we discussed about the definitions and meanings of criminology and crime, and I discussed with you people the definitions of different writers, criminologists. So let's start that lecture. So criminology, as we discussed before, is basically studying the criminal behavior scientifically, and crime is basically the action that is forbidden by the law of land and for which the penalty is perceived. So the study of criminology है, ठीक है, इसने modern times में it has gained greater significance. Reason क्या है? Because of the growing menace of crimes. आपको पता है कि जो मॉडर्न टाइम्स आजकल के दौर में इंसिडेंट्स ऑफ टेररिज्म, स्कैम्स ऑफ वेरियस नेचर्स, रॉबरीज, स्कैंडल्स और क्रिमिनल रैकेट्स वगैरह जो है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है इनका जो टॉल है वो बहुत इंक्रीज़ हो गया सोसाइटी के ऊपर. और अगर मैं अब इस पॉइंट के ऊपर आके अगर क्रिमिनोलॉजी को एक्सप्लेन करूँ कि व्हाट इज़ क्रिमिनोलॉजी, सो इन अ नटशेल criminology is basically the interrelationship between crime and criminals and the impact of crimes on the society as a whole, because we are considering here that no one is born criminal. ठीक है, हम एक जनरल हमने एक assumption है that no one is born criminal and these are the circumstances that make people criminal or that force people to commit crime. Now coming towards criminal justice system, और अगर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टली डिफाइन करूँ तो ये criminal justice system क्या है. So criminal justice system is basically, you can say, the set of agencies and processes that is established by the government. और establish क्यों की जाती है? To control crime and to impose penalties on those who violate the laws. अब इस criminal justice system के जो हैं आपके पास two ultimate goals होती हैं. Number one is prevention of the crime and reformation of the criminals. Second one. So ये जो दो काम है, you can written it is you can see that it is written in the black, prevention of crime and reformation of criminals. ये दोनों जो you can see काम है, ये जो है ये criminal justice system जो आपके पास ये perform करता है और ये उसकी responsibility होती है. Now what are the essential principles of criminology? पहला ये है कि special measures to reform criminals in general and the first time offenders means first time offenders वो होते हैं जिन्होंने first time जो है कोई crime commit किया होता है. साथ ही साथ आपके पास juvenile delinquents हैं and innocent criminals in particular. तो इन सब की reformation जो है, this is the basically the essential principle of criminology. और ये अगर मतलब सब कुछ किया जाए तो what how it will help? It can help in transforming the wrongdoers in productive and law-abiding citizens. सारी बात है, जब रिफॉर्मेशन होगी आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स के अंदर भेजेंगे तो वो जो है वहाँ से निकल के वो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स जो है वो बन जाएंगे. एंड this will assure the coming generations a crime-free society. So this is how criminology helps, or it was the basically the brief intro you can say. So basically जो लास्ट स्लाइड में हमने पढ़ा उसे जो है इट इज़ बेसिकली अंडर द हेडिंग ऑफ नेचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, बिकॉज आज के जो टॉपिक आपके पास उसमें नेचर भी है, क्योंकि आपने इसमें देखा कि क्रिमिनोलॉजी जो है ये क्या कवर करता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसका फंक्शन क्या है. ब्रीफली आई हैव डिस्क्राइब्ड यू. सो अब क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं उनका क्या फंक्शन है, वो क्या यानी कि रोल प्ले करते हैं. क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है दे स्टडी द नेचर ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनल्स, origin of criminal law and social reactions to crime, and you can say that how crime is being committed and the functioning of law enforcement agencies and penal institution. ये सब चीज़ों को जो स्टडी है ना ये आपके पास क्रिमिनोलॉजिस्ट करते हैं. और अगर broadly speaking if I say here is that criminology it directs its inquiries along three lines. ठीक है, पहली क्या है कि it investigates the nature of criminal law and its administration and condition under which it develops.
ये पहला जो है फंक्शन है जो कि या यू कैन से कि ये पहली लाइन है या पहला यू कैन से कि ब्रांच तो नहीं एज इट इज़, बट ये पहली चीज़ है जिसे जो है क्रिमिनोलॉजी या क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो डिटेल में स्टडी करते हैं, या क्रिमिनोलॉजी सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसके अंदर स्टडी किया जाता है। सेकंड क्या है, इट एनालाइजेस द कॉजेशन ऑफ क्राइम एंड द पर्सनैलिटी ऑफ द क्रिमिनल। ठीक है, कि कैसे क्राइम कमिट हुआ और जो क्रिमिनल है जिसने क्राइम कमिट किया है उसके पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ट्रेड्स कैसे हैं, वो किस जो है यू कैन से कि एनवायरनमेंट में उठता बैठता था, किस एरिया को बिलोंग करता है, क्या हैबिट्स थी उसकी, दिस ऑल कम्स अंडर इट। थर्ड जो है, इट स्टडीज़ द कंट्रोल ऑफ क्राइम एंड द रिहेबिलिटेशन ऑफ द ऑफेंडर्स। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस में आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या है कि पहले नेचर ऑफ क्रिमिनल लॉ, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और कंडीशन अंडर विच इट इज़ डेवलप। क्रिमिनल लॉ होगा, उसे समझेंगे तो ही पता चलेगा कि अब क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है। सेकंड ये है कि क्राइम जो है वो कॉज क्यों हुआ और जिसने कॉज किया मींस द क्रिमिनल, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड थर्डली क्या है कि अब क्राइम तो हो गया, कमिट हो गया, तो अब इस क्राइम को कंट्रोल कैसे करना है, और जो आपके पास ऑफेंडर्स हैं जिसने यानी कि क्राइम कमिट किया है क्रिमिनल ने, उसके जो है रिहेबिलिटेशन के लिए क्या करना चाहिए। तो ये 3 लाइंस हैं along which the criminology directs its inquiries. So this is basically the nature of criminology, and if you guys have any question, you can always ask in the comment section, and I will try my best to answer all your queries. पर प्लीज़ काइंडली जो है आप लोग क्वेश्चन किया करें, जो ना समझ आए टेल मी, आई विल एक्सप्लेन इट, आई विल प्रोवाइड यू विद नोट्स। ठीक है, तो एंड आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक जो है लास्ट वीडियो जो थी क्रिमिनोलॉजी का जो फर्स्ट लेक्चर उसके अंडर है उसका लिंक। सो whoever wants to join it, you can go and use that link. सेकेंड पार्ट जो आपके आज के लेक्चर का है, इट इज़ द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। स्कोप का मतलब दायरा कार, मीन्स के द एक्सटेंट या रेंज एक सब्जेक्ट जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, वो किस किस यू कैन से सब्जेक्ट के साथ या किस किस चीज़ मैटर के साथ वो डील करता है। ठीक है, किस चीज़ों के साथ रेलिवेंट है। सो ये होता है स्कोप, दायरा का। क्रिमिनोलॉजी जो है इट इंक्लूड्स विद इन स्कोप, पहली बात ये है एक्टिविटीज़ ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडीज़, ठीक है, जो लॉ बनाती हैं। सेकेंड, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, इनकी एक्टिविटीज़ के साथ इसका ताल्लुक है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यू हैव पुलिस, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस दैट प्रोवाइड द जस्टिस, दैट आर योर कोर्ट्स ऑफ कोर्स। करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ करेक्शनल इंस्टीट्यूशन में आपके पास प्रिजन आ जाता है और रिफॉर्मेटरीज आ जाती हैं जहाँ पे मीन्स जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह। साथ ही साथ आपके पास जो है एजुकेशनल, प्राइवेट एंड पब्लिक सोशल एजेंसीज़। ठीक है, ये सब कुछ जो है ये आपके पास आ जाता है। मतलब जो क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है, इन इट्स स्कोप इट डील्स विद द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस, जितने भी लिखवाए हैं मैंने, लेजिस्लेटिव बॉडीज़, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, करेक्शनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट, पब्लिक एंड एजुकेशनल जस्टिस, ये जो सब कुछ है इनके साथ क्रिमिनोलॉजी जो है वो डील करती है। इसके स्कोप में इन सब की एक्टिविटीज़ जो है वो आ जाती हैं। अब जो है क्रिमिनोलॉजी, इसका स्कोप इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ कॉजेशन एंड द पॉलिसीज़ ऑफ क्राइम कंट्रोल। ठीक है, जैसे हम ऊपर पढ़ा कि ये एक्टिविटीज़ मतलब ये जितने भी इंस्टीट्यूशन इनकी एक्टिविटीज़ के साथ इसका स्कोप के अंदर आ जाती हैं। बट अब क्या है, क्रिमिनोलॉजी जो है ये सर्टेन नॉन क्रिमिनल बिहेवियर का भी जो है वो नोटिस लिखता है। मतलब इसके अंदर आप सर्टेन नॉन क्रिमिनल बिहेवियर भी जो है उन्हें स्टडी भी किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल लें, जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन, किसी चीज़ के इन्वेस्टिगेशन के जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होते हैं। अब जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स क्या होते हैं, आगे प्रॉपर टॉपिक ही आएगा पूरा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के अंदर और उसमें बताऊंगी। पर अगर मैं आपको एक शॉर्ट डेफिनेशन बताऊं तो देज आर बेसिकली यंग पर्सन हु कमिट्स क्राइम, और ये टीनेजर्स होते हैं, ठीक है, जो कि क्राइम कमिट करते हैं और इन्हें हम जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स को अगर आप स्टडी करो, ठीक है, तो वो ये यानी कि रिवील करते हैं कि डेलिक्वेंसी के अंदर, मतलब ये जो उनका यू कैन से कि एक क्रिमिनल बिहेवियर कह लो या एक नॉर्मल बिहेवियर से हट के जो है
वो इस वजह से होता है कि बिकॉज उनकी जो एनर्जीज़ हैं दे आर नॉट प्रॉपर्ली चैनलाइज, तो इस चीज़ को भी स्टडी किया जाता है। अब एनर्जी किस वजह से प्रॉपर्ली चैनलाइज नहीं हुई, क्या उनका एनवायरनमेंट ऐसा था, क्या उनकी मेंटल कंडीशन ऐसी थी, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर जो है स्टडी की जाती हैं। अब ये नॉन क्रिमिनल बिहेवियर ही है, ठीक है। तो क्रिमिनोलॉजी जो है एक चीज़ ये है कि स्टडी ऑफ कॉजेशन ऑफ क्राइम, एंड सेकेंडली के पॉलिसीज़ जो बनाई गई हैं क्राइम कंट्रोल की उन्हें स्टडी करता है, साथ ही साथ नॉन क्रिमिनल बिहेवियर को भी स्टडी करता है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस स्कोप ऑफ क्रिमिनल फिर क्रिमिनोलॉजी, और अगर फिर भी कुछ समझ ना आए काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नाउ यू हैव अमेरिकन क्रिमिनोलॉजिस्ट दैट उनका नाम है वॉल्टर रेकलेस, और वॉल्टर रेकलेस जो है ही इज़ नॉन फॉर हिज कंटेनमेंट थ्योरी। और वॉल्टर रेकलेस ने जो है ही स्टेटेड द सम कंटेंट्स दैट शुड बी कवर्ड इन क्रिमिनोलॉजी। उन कंटेंट्स को जो है हम वन बाय वन देखते हैं। तो वॉल्टर रेकलेस के मुताबिक जो है फॉलोइंग कंटेंट्स दीज शुड बी कवर्ड इन द क्रिमिनोलॉजी, और यू कैन से बाय क्रिमिनोलॉजी। फर्स्ट क्या था, he says that the study of criminology should cover how crimes reported to official sources and acted upon officially। पहली बात क्राइम रिपोर्ट कैसे हुआ और उसके ऊपर ऑफिशियल्स ने एक्शन कैसे लिया, क्या एक्शन लिया। सेकेंड ही सेज दैट इट शुड स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एंड चेंजेस इन क्रिमिनल लॉज, ठीक है, as they relate to social, economic and political system and to the social values in various societies। आपको पता है कि जितने भी लॉज बनते हैं वो किसी भी सोसाइटी के सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाए जाते हैं। तो इसलिए उसने ये कहा कि क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ जो है वो डेवलप कैसे होते हैं, उनमें क्या चेंजेस आती हैं, सब कुछ स्टडी किया जाना चाहिए। थर्डली वॉल्टर क्या कहते हैं दैट क्रिमिनोलॉजी शुड स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिमिनल। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फर्स्टली सेक्स, क्लास, मैरिटल कंडीशन, ठीक है। मैरिटल कंडीशन यू नो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि वेदर क्रिमिनल इज़ मैरिड और नॉट। ऑक्यूपेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट, साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिजिक, पैथोलॉजिकल कंडीशन ऑफ माइंड एंड बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन्हें स्टडी किया जाना चाहिए। एंड साथ ही सेज दैट इन सबको कंपेयर किया जाना चाहिए विद दोज ऑफ नॉन क्रिमिनल्स, ठीक है। आप एक क्रिमिनल में ये सब चीज़ें स्टडी कर रहे हो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स आई हैव सेड हियर, और इन्हें आप कंपैरिजन किसमें किनके साथ किया जाना चाहिए, विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन क्रिमिनल्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों एफर्ट की जा रही है, ये जो एफर्ट यहाँ पे की जा रही है कि आप स्टडी कर रहे हो पहले डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन यू आर कंपेयरिंग इट विद दोज ऑफ नॉन क्रिमिनल्स। ये एफर्ट इसलिए की जा रही है टू डिस्कवर व्हाट काइंड ऑफ पीपल डू एंड डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन क्राइम। आपको समझ आ जाएगा इन सब चीज़ों को स्टडी करने से और कंपैरिजन करने से कि जो लोग क्राइम जो है कमिट करते हैं और क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं और जो नहीं होते उनमें कहाँ फ़र्क आ रहा है और कौन से यानी कैसे असबाब पैदा होते हैं कि लोग जो हैं वो क्राइम की तरफ जो है उनका रुझान हो जाता है। फोर्थली आपके पास वॉल्टर कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी शुड स्टडी द एरिया एंड रीजनल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ क्राइम, मतलब एरियाज़ के कंपैरिजन और जो रीजन वाइज जो है कि क्राइम रेट क्या है वो स्टडी किया जाना चाहिए। और साथ ही साथ वेरिएशन इन स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ क्राइम के किस जगह पे मतलब पैटर्न ऑफ क्राइम क्या है, मतलब डिफरेंट क्राइम्स हैं, रॉबरीज़ हैं आपके पास जो है डिफरेंट क्राइम्स हैं यू नो, ठीक है। तो उन वाइट कॉलर क्राइम है आपके पास, रॉबरीज़ हैं, हाईवे रॉबरी है और इस तरह की चीज़ें। तो कौन से एरिया में जो है कौन सा क्राइम जो है वो ज़्यादा कमिट किया जाता है। देन ही सेज दैट इट शुड अटेम्प्ट to shed light on the causative factors of crime and should formulate causal theories, ठीक है। कि वो ये कहता है कि जो क्राइम के कॉजेटिव फैक्टर्स हैं कि क्यों कॉज की हो रहा है क्राइम और उन्हें स्टडी करना चाहिए, और साथ ही साथ ये है कि कैजुअल थेरीज़ जो हैं वो फॉर्मुलेट जो है करनी चाहिए, क्योंकि जब थेरीज़ फॉर्मुलेट होती हैं तो ही पता चलता है कि क्राइम मतलब थेरीज़ को फॉर्मुलेट ही इस तरह किया जाता है कि क्राइम के कॉजेशन फैक्टर्स को सामने रखते हुए। देन वॉल्टर जो है वो ये कहता है कि शुड स्टडी द स्पेशल मैनिफेस्टेशन ऑफ क्राइम दैट आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी क्राइम्स,
लाइक आपको पता है कि क्राइम जो है डिफरेंट क्राइम्स हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम्स हैं, वाइट कॉलर क्राइम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि डिस्प्ले या यू कैन से कि डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है, कि किस तरह क्राइम जो है वो कमिट हुआ है। तो वो कहते हैं कि क्रिमिनोलॉजी को इसे स्टडी करना चाहिए। देन Walter says that criminology should study the relation of closely affiliated problems to crime, स्पेशली एल्कोहलिज्म। आपको पता है एल्कोहलिज्म की वजह से क्राइम बहुत ज़्यादा कमिट होता है। ड्रग अब्यूज़, प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ठीक है, वेग्रेंसी वगैरह, इनकी वजह से जो है आपको पता है सोसाइटीज़ में क्राइम जो है वो कमिट होते हैं। और क्या है कि दीज आर द क्लोजली एफिलिएटेड प्रॉब्लम्स टू क्राइम। अभी मैंने यहाँ पे आपके पास एक वर्ड बोला था वेग्रेंसी, और वेग्रेंसी इज़ बेसिकली होमलेसनेस को कहते हैं वेग्रेंसी, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ऐसे यानी कि हालात ख़राब हों तो भी जो है लोग क्राइम की तरफ जो है वो इंक्लाइंड होते हैं। तो वो कहते हैं कि ये जितने भी क्लोजली एफिलिएटेड प्रॉब्लम्स हैं टू द क्राइम, ये सब जो है इन्हें भी क्रिमिनोलॉजी को स्टडी किया जाना चाहिए, क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाना चाहिए। देन ही सेज दैट इट शुड स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट एंड ऑफ स्पेशल लॉज इन द कंट्रोल ऑफ क्राइम, कि आपके पास जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और जो स्पेशल लॉज बने हुए हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, उसके अंदर जो भी डिफेक्ट्स हैं, जो भी यानी कि यू कैन से कि जो भी गैप्स वगैरह रह चुके हुए हैं, उन्हें स्टडी किया जाना चाहिए। देन ही सेज दैट इट शुड स्टडी द इफेक्टिवनेस ऑफ द मेयर्स टू ट्रीट अफेंडर्स, ठीक है, कि जो भी यानी कि मेयर्स हैं, अब कौन कौन से मेयर्स हैं, उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट है, प्रोबेशन है, पैरोल है, इंस्टीट्यूशनल ट्रीटमेंट है, ठीक है, उसके बाद एंड आफ्टर केयर वगैरह। तो इन सब चीज़ों को भी जो है इफेक्टिवनेस के कितने इफेक्टिव हैं किसी क्रिमिनल के या ऑफेंडर को ट्रीट करने में, उसको उससे दोबारा जो है सोसाइटी का हिस्सा बनाने में कितने इफेक्टिव हैं। तो इन सब चीज़ों को भी क्रिमिनोलॉजी में जो है स्टडी किया जाना चाहिए। Lastly, what Walter says is that it should study various efforts and experiments to prevent crime and delinquency, ठीक है, कि अब एफर्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के, ठीक है, ये सब कुछ तो हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा। अब ये है कि अब क्राइम को प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, उसके लिए क्या एफर्ट्स हमें करनी चाहिए, क्या एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, क्या यानी कि सोसाइटी में क्या यानी कि ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए कि आपके किसी भी सोसाइटी में क्राइम रेट जो है वो कम हो जाए, ठीक है। मतलब ये कि जैसा आपको पता है कि क्राइम रेट उससे भी ज़्यादा होता है कि जब लोग जो हैं, जब लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, और जैसा मैंने कहा वेग्रेंसी की, मैंने कहा कि वो होमलेसनेस है, तो लोग जो है क्राइम की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को दूर किया जाए, लोगों की जो है फाइनेंशियल कंडीशन को जो है इम्प्रूव किया जाए। तो ये सब चीज़ें, तो ये वो पॉइंट्स है जो वॉल्टर ने कहा कि क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किए जाने चाहिए। सो दिस वाज द स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी। लास्ट जो आज का टॉपिक है दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी, यू नो, इट इज़ द ब्रांच ऑफ क्रिमिनल साइंस, और इसके अंदर आप क्रिमिनल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, फ्रॉम द सोशियोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू भी स्टडी किया जाता है। और इसका मकसद क्या है स्टडी करने का, मैं सभी रिवाइज़ कर रही हूँ कि टू डिस्कवर द कॉजेज़ ऑफ क्राइम एंड द इफेक्टिव मेजर्स टू रिड्यूस दैम। साथ ही साथ क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं ये ऑल्सो डील विद द ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड कस्टडी एज वेल एज हाउ टू कंट्रोल द क्राइम। और ये जो कंट्रोल ऑफ क्राइम है पेनोलॉजी के अंदर आता है। मॉडर्न एज में स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है वो सबके लिए बेनिफिशियल है जो कि इसके साथ कंसर्न है। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे फर्स्ट ये है पॉइंट कि जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड वेरियस बिहेवियर्स ऑफ पीपल विच आर ऑब्नोशियस और एंटी सोशल, ठीक है। और ये इंकरेज करता है रिफॉर्मेटिव ट्रीटमेंट को इन डीलिंग विद फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। आपको मैंने बता दिया फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स कौन होते हैं, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स एंड इनसेंट क्रिमिनल्स। एंड साथ ही साथ क्या होता है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ जब ट्रीटमेंट हो गया तो उन्हें ट्रांसफॉर्म करने में, टू ट्रांसफॉर्म देम इनटू लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स विल द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि क्राइम फ्री सोसाइटी बन जाए। तो ये पहला जो है क्रिमिनोलॉजी का जो है इंपॉर्टेंस है कि क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने से आप इन सब चीज़ों को स्टडी कर लेते हो और एज अ रिज़ल्ट व्हाट यू गेट इज़ अ क्राइम फ्री सोसाइटी। सेकेंड क्या है कि जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट है फॉर द नॉलेज ऑफ द कॉज
विच लीड टू द क्रिमिनल बिहेवियर। ठीक है, हम स्टार्टिंग से बात करें कि जिस वजह से क्रिमिनल बिहेवियर, कोई भी बंदा जब क्रिमिनल बनता है उसके अंदर क्रिमिनल बिहेवियर जो है वो क्या कहते हैं आ जाता है, क्राइम की तरफ इंक्लाइन होता है, एंड ऑल्सो फॉर द प्रॉपर पनिशमेंट ऑफ द क्रिमिनल्स। ये इंपॉर्टेंस है क्रिमिनोलॉजी की स्टडी करने की। थर्डली, स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अदर ऑर्डरली सोसाइटी। ऑर्डरली सोसाइटी मतलब एक मनज़म सोसाइटी जो आपके पास है। अगर मतलब जो हमारा लेजिस्लेटर है दैट मेक्स द लॉ, ठीक है, दे हैव द, इफ़ आवर लेजिस्लेटर हैव द बैकग्राउंड ऑफ क्रिमिनोलॉजी, वो क्या करेंगे, वो ऐसे लॉ एनेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि जो सोसाइटी है उसके अंदर एक ऑर्डर, पीस और वेल बीइंग जो है सोसाइटी की हो। ठीक है, ये उस वक्त है कि जब उसके पास बैकग्राउंड होगा किसका, क्रिमिनोलॉजी का। तो क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करने का एक फ़ायदा ये भी है। फिर आपके पास स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी नेसेसरी इसलिए है टू हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट लीगल सिस्टम्स। मतलब ये कि कैसे जो है क्राइम्स और क्रिमिनल्स जो हैं डिफरेंट लीगल सिस्टम्स में उन्हें डील किया जाता है। पास्ट प्रैक्टिसेस, जो पास्ट में थी प्रैक्टिसेस, और प्रेजेंट ट्रेंड्स जो हैं उन्हें स्टडी करना चाहिए कंपैरेटिवली, सो एज टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इन कंटेक्स्ट ऑफ आवर सोशियो लीगल सिस्टम। मतलब आपको पता है ना, वक्त के साथ जो है सब कुछ चेंज होता जाता है, सोशियो लीगल सिस्टम चेंज हो रहे हैं। तो अब जब आप पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारी जो अप्रोच है टूवर्ड्स द कंट्रोल ऑफ क्राइम, ट्रीटमेंट ऑफ क्रिमिनल्स, वो कितनी को इफेक्टिव है। देन स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल नॉलेज एंड स्किल्स that are required not only for the controlling of crime but they are also in designing plans to identify the causes of crime and appropriate remedial measures। ठीक है, तो इसलिए भी जो है क्रिमिनोलॉजी, मतलब अगर मैं इस सब, ठीक है मैंने इंग्लिश में सारा बोला है, तो अगर मैं इसे उर्दू में करूँ तो मतलब यही है कि आपकी जो स्टडी है क्रिमिनोलॉजी की वो साइंटिफिक हेल्प करती है इम्प्रूव करने में साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को और स्किल्स को जो कि चाहिए होते हैं आपके पास। ठीक है, जो कि आपको चाहिए होते हैं फॉर कंट्रोलिंग क्राइम एंड साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं ऑल्सो फॉर डिज़ाइनिंग प्लान्स। ठीक है, ताकि आइडेंटिफाई किया जाए कॉजेज़ ऑफ क्राइम को, अप्रोप्रिएट जो रेमेडियल मेजर्स हैं उसके लिए अडॉप्ट करने के लिए, मतलब कॉजेज़ ऑफ क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, वो सब कुछ। इसलिए भी क्रिमिनोलॉजी को जो है वो स्टडी किया जाना चाहिए और यही इसकी इम्पोर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस में इसकी अहमियत है ना, मतलब ये कि इसके एडवांटेजेस कहाँ कहाँ हैं, क्रिमिनोलॉजी का बेनिफिट्स कहाँ कहाँ हैं, स्टडी करने से आप ज़रूरी क्यों है स्टडी करना क्रिमिनोलॉजी को, तो ये सब चीज़ें। अच्छा, देन नॉलेज ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर सर्टेन प्रोफेशनल्स, और उन लोगों के लिए भी हु वांट टू प्रोवाइड सोशल सर्विसेज। ठीक है, ये जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है ये हेल्प करती है मजिस्ट्रेट्स को, पुलिस को, प्रिजन ऑफिसर्स को, प्रोबेशन और पैरोल अथॉरिटीज़ को, कि वो डील कर सके विद द क्रिमिनल्स इन अ ह्यूमेन मैनर, सो दैट दे मे नॉट ओनली बी पनिश बट एडिक्वेटली रिफॉर्म। क्योंकि मकसद हमारा क्या है कि हमने सिर्फ पनिश नहीं करना बल्कि उनकी रिफॉर्मेशन भी करनी है ताकि वो वापस सोसाइटी का एक हिस्सा बन जाए। ठीक है, ताकि वो सोसाइटी का दोबारा से आप उन्हें सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट कर सको। फिर आपके पास स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी जो है, जैसा हमने पहले पढ़ा कि ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्राइम एंड क्रिमिनल्स, और इसके पीछे जो बेसिक अजम्पशन है वो यही है कि नो वन इज़ बॉर्न क्रिमिनल। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है। अब क्या होता है कि ये बट इट एस्पायर इज़ दैट द रिफॉर्मेशन ऑफ क्रिमिनल्स इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ द पनिशमेंट। ये जो पनिशमेंट क्रिमिनल्स को दी जाती है उसका मकसद ही ये है कि उनकी रिफॉर्मेशन की जा सके। तो ये भी क्रिमिनोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन क्रिमिनोलॉजी जो है इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द सेंटिमेंटल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक, सेंटिमेंटल और क्या है कि सेंटिमेंटल इंटरेस्ट जो है उनके साथ लिंक करता है, और इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्यूरोसिटी अमंग पीपल। ठीक, और क्या है कि रीज़न क्या है, बिकॉज आपको पता है कि सर्टेन पीपल जो हैं दे पोजेस अ स्ट्रेंज क्यूरोसिटी अबाउट क्राइम। वैसे भी अगर आप देखें क्या कहते हैं कि कोई भी लोग जो हैं जैसा
कौन से वो होती हैं नॉवेल्स वगैरह, नॉवेल्स जो डिटेक्टिव नॉवेल्स होते हैं या इस तरह के थोड़े से मिस्टीरियस से नॉवेल्स होते हैं उन्हें ज़्यादा, या ड्रामे जो होते हैं उन्हें ज़्यादा जो है क्यूरोसिटी से देखती हैं। तो इससे होता क्या है कि ये स्ट्रेंज क्यूरोसिटी होती है लोगों में, ठीक है, अबाउट क्राइम एंड क्रिमिनल्स, ठीक है। तो ये जो है क्या है कि इसलिए वजह से जो है क्रिमिनोलॉजी जो है इट इज़ लिंक्ड विद द सेंटिमेंटल इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। अब आपको पता है कि एक सोसाइटी में एक तरह के लोग नहीं रहते, मीन्स वो लोग भी हैं दोज हू पोजेस एंजेलिक क्वालिटीज़, और वो लोग भी हैं जो वायलेट करते हैं लॉ को और कमिट करते हैं क्राइम, ठीक है। अब हाई रेट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम जो है ये क्या करता है, ये एंडेंजर करता है द पीस एंड ऑर्डर ऑफ अ सोसाइटी, और इसके साथ साथ क्या है कि इट गिव्स अ सेट बैक इन इट्स डेवलपमेंट। जिस सोसाइटी में पीस एंड ऑर्डर ही नहीं होगा, क्राइम रेट ज़्यादा होगा, वो सोसाइटी आप खुद सोचेंगे वो कैसे जो है डेवलप कैसे करेगी या वो आगे तरक्की प्रोग्रेस कैसे करेगी। तो जो अब क्या है, अगर हम इंपॉर्टेंस के साथ लिंक करें कि क्रिमिनोलॉजी को स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, वो उसका मकसद इसलिए है कि जो थोरो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है और क्रिमिनल लॉ की, ठीक है, वो क्या करेगा, इट इज़ नेसेसरी टू फाइंड आउट द वेज टू रिड्यूस द रेट ऑफ क्राइम। तो ये आपके पास क्रिमिनोलॉजी की इंपॉर्टेंस, आप स्टडी करेंगे क्रिमिनोलॉजी को, क्रिमिनल लॉ को, तो आपको पता चलेगा कि आप क्राइम रेट को किसी भी सोसाइटी में कैसे रिड्यूस करना है। अब जो स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी है वो ये करता क्या है, इट थ्रोज लाइट अबाउट द जस्टिफिकेशन ऑफ स्वीयर पनिशमेंट्स, जैसा कि लाइक लाइफ सेंटेंस और कैपिटल पनिशमेंट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्रिमिनोलॉजी में जो है आप स्टडी करते हो कि किससे जो है इस तरह की स्वीयर पनिशमेंट्स जो हैं वो मिलनी चाहिए, बिकॉज यू नो दैट मैन इज़ नॉट विकेड बाय नेचर, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, फीलिंग्स या इमोशनल कन्फ्लिक्ट जो हैं दे क्रिएट एन ईवल इंटेंट इन हिज माइंड, और वाइल परस्यूइंग दैट इवल इंटेंट ही कमिट्स क्राइम। सो इस चीज़ को जो है क्या कहते हैं कि कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए क्रिमिनोलॉजी को जो है वो स्टडी किया जाता है। लास्टली आपके पास जो है लास्ट इंपॉर्टेंस जो है स्टडी ऑफ क्रिमिनोलॉजी, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर सोशियोलॉजिस्ट, बिकॉज जो क्रिमिनल बिहेवियर है, ये जो क्रिमिनल बिहेवियर आता है इसे जनरली जो है इट इज़ लुक्ड अपॉन कि ये रिज़ल्ट होता है फ्रॉम द सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब कि इंसान का उठना बैठना किसी ऐसी सोसाइटी में है, ऐसे लोगों में है कि जो कि इंक्लाइंड है टूवर्ड्स द क्रिमिनल बिहेवियर, क्रिमिनल एक्टिविटीज़, तो उस वजह से जो है क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टडी, क्रिमिनोलॉजी की जो स्टडी है या क्रिमिनोलॉजी को पढ़ना जो है सोशियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। इस क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट को क्या है, स्टडी करना पड़ता है सोशल प्रॉब्लम्स को विद इन द परव्यू ऑफ द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ सोसाइटी। तो ये जो सब चीज़ें थी, दीज वर द यू कैन से द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी। इसके अंदर आप और भी बहुत सब कुछ जो है वो ऐड कर सकते हो डिफरेंट जगहों से, और क्रिमिनोलॉजी को बेसिकली प्रिपेयर करने का तरीका ही ये है कि आप जो हो इसे रिसर्च है, क्रिमिनोलॉजी की तैयारी में बेसिकली आपकी रिसर्च है, आप जितना पढ़ते हो उतना कम है, डिफरेंट जगहों से मटेरियल गैदर करो ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो। आई होप कि जो आज के लेक्चर में जितना भी नेचर, स्कोप और इम्पोर्टेंस हमने स्टडी किया वो आपको समझ आ गया होगा, और अगर स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। और आप जो हैं पूछें, जितना पूछ सकते पूछें, क्योंकि पूछने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। साथ ही साथ आप जो है स्टडी करें डिफरेंट मटेरियल्स, क्योंकि PDF फाइल्स जो हैं मैंने बुक्स जो हैं मैंने अपलोड की हैं लिंक में, वो मैं इस वीडियो के अंडर भी जो है पेस्ट कर दूंगी, और आप लोग जो हैं व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और क्रिमिनोलॉजी का होपफुली एज आई टोल्ड यू कि नवंबर के अंदर अंदर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सिलेबस को बस ख़त्म कर दूँ, ताकि आप लोग की जितनी हेल्प हो सके, जिन्होंने कमिंग एग्ज़ाम्स के लिए क्रिमिनोलॉजी ऑप्ट किया है वो उनकी हेल्प हो सके। और अगर आपको ये कि मेरे लिए कोई सजेशन है, बिकॉज इंसान इम्प्रूव करता है, तो सजेशन है कि मुझे अपना कोई स्टाइल चेंज करना चाहिए, या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा मेरे यानी कि टीचिंग वे में, तो मैं आप मुझे वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।